Hello children, a very good morning to all of you. So welcome back to your channel, आपका अपना channel where we were discussing about the topic functions. So in the previous classes, lesson 1, 2, 3 and 4, we've done 4 lessons so far and we've discussed almost everything about functions. Right? So if you've not watched the previous videos and if you're new to our channel, so please go and watch the lessons. I always say it's our channel because it's not my channel, it's our channel because it's together that we build this channel. Yes, okay. So today will be the final battleground because we're going to discuss all the kind of MCQ questions that have generally repeatedly been coming in your CBSE board exams, and we are expecting to get more of such questions in the coming exams. Right, so we'll start with the questions. I am also putting up the timer on the screen so that I give you ample of time for you to think about what could be the answer, and then we'll discuss the solution about it. Okay, chalo. Moving to question number 1 on your screen. It is visible, yes. Okay, yes. So which of the following graph represents a function? Which of the following graph represents the function? And your timer starts now. Okay, time's up. So for the graph to represent a function, हमने क्या किया था कि एक पर्टिकुलर बच्चे की दो मम्मी नहीं हो सकती, किया था हमने. सो एक पर्टिकुलर x के हमारी दो वैल्यूज नहीं हो सकती. एंड हाउ डू वी टेस्ट इट? थ्रू योर वर्टिकल लाइन टेस्ट. और ये चीज़ हम लेसन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाट डू? You draw the vertical lines, and if it cuts the graph only once, that becomes your function. So the answer is option A. अब बाकियों में भी चेक कर सकते हो. See, a single vertical lines कितने बार में टच कर रही हैं? 1, 2, 3. So it's not a function, right? यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो. It's cutting at 2 points. इस वाले ऑप्शन डी पे भी आप चेक कर सकते हो. It is again cutting at 2 points. So which graph is a function? It is option number A, right? Moving on to question number 2. Which of the following graphs represents 1, 1 function? And here is your timer. Time's up. Okay. So for representing 1, 1 function graphs में भी there is horizontal line test. कैसे? पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आपकी horizontal line किसी भी ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे आपका कट करेगी, then that will not be. For example, मैंने यही वाला ग्राफ ले लिया. अब अगर मैंने इस पर horizontal line ड्रॉ करी, देखो ये दो वैल्यूज आ गई. इसका मतलब ये जो y है ना, ये इस x के साथ भी जुड़ रहा है, इस x के साथ भी जुड़ रहा है. इज इट पॉसिबल फॉर 1, 1 फंक्शन की 2x आपके पास एक y के पास जा रहे हैं? हमने तो 1, 1 की डेफिनेशन क्या की थी कि इमेज इज डिस्टिंक्ट, इमेज इज यूनिक, एंड सो दैट्स नेवर पॉसिबल, राइट? सो हाउ डू यू डू? बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू गोइंग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड यू गोइंग टू चेक कि क्या एक बार टच कर रहा है? कर रहा है. सो देयरफॉर यस, दिस इज अ 1, 1 फंक्शन. Check for another. See, it is again cutting at 3 points. It is not a 1, 1 function. Not a 1, 1 function. Not a 1, 1 function. और वैसे भी हम कर चुके हैं. R2R, x square, parabola, not a 1, 1 function. Mod x, not a 1, 1 function. We've already done this. Yes? चलिए. Moving to question number 3. Time's up. चलिए. Function r to r given by fx is equal to x plus root x square
इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव और नन। वेरी सिंपल, और ध्यान से देखना। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर। अब 2 एंड द रूट कैंसल्स एंड इट बिकम्स मॉड एक्स। यस, हुआ। अब देखिए ये आपके पास क्या हुआ, एक्स ऑफ मॉड एक्स क्या हो सकता है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स, एक्स लेस देन 0 माइनस एक्स। तो दैट इज इट इज आइदर एक्स प्लस एक्स और इट इज एक्स माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स हो गया 0, एक्स प्लस एक्स आपके पास क्या हो गया 2x। अब पहले इंजेक्टिव के लिए चेक करते हैं। इंजेक्टिव मतलब क्या होता था 1 1। अब क्या मेरे को ये नहीं पता कि एफ ऑफ 1 भी मुझे 1 माइनस 1 0 दे रहा है, एफ ऑफ 2 भी मुझे 2 माइनस 2 0 दे रहा है। इफ आई टेक दिस, सो विच मीन्स इट इज अ मेनी वन फंक्शन, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो ये इंजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, राइट। लेट्स चेक फॉर सर्जेक्टिविटी। आपके पास जा रहा है ये r से r। अब मेरे पास अगर 2x वैल्यू ले रहा है, ये 0 वैल्यू ले रहा है, ठीक है। क्या मेरे पास कभी भी, थिंक अबाउट इट, अगर मैंने नेगेटिव फिगर भी ले ली x की, नेगेटिव भी ले ली, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर में, क्या y कभी भी मुझे कोई नेगेटिव वैल्यू देगा, से -1 कभी भी आएगी? चेक करके देख लो, किसी भी x की वैल्यू फॉर x गोइंग टू रियल नंबर, क्या मेरे पास -1 आएगा? नहीं आएगा। अगर मैं ये 2x भी ले रही हूँ या मैं 0 भी ले रही हूँ, आपकी रेंज ऑफ y क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी आएगी। देखो, विच इज़ अ सबसेट ऑफ दिस r, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो y आपका ले ही नहीं रहा, तो मतलब y नेगेटिव की कोई इमेज नहीं है x के अंदर, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट इंजेक्टिव, इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का तो क्वेश्चन वहीं पे ही नहीं बनता, तो देयरफॉर इट इज़ नन। आई होप इट इज मेकिंग सेंस एंड इट्स क्लियर। इसमें मॉड लग गया ना राजे, इसमें मॉड लग गया। तो अगर आपने x को नेगेटिव भी लिया, आपने x को पॉजिटिव, यहाँ से तो बेटा हम सिर्फ फंक्शन को तोड़ रहे हैं, व्हाट आर द फंक्शंस इट कुड टेक, बट y क्या है आपके पास, आंसर क्या आता है। तो मॉड क्या कर रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना रहा है, तो आंसर तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा ना। x प्लस पॉजिटिव नंबर y इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव आंसर। यस, तो आपके पास वो चीज़ नेगेटिव फाइल हो ही नहीं सकता। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यस, एंड दिस इज योर टाइमर। Okay, time's up. So the function goes from r except b to r except 1, defined by itne. Then f will be what? 1 1 के लिए पहले हम चेक करते हैं। अगर हम 1 1 के लिए चेक करें, हमारे पास क्या होता है, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, ये होता है हमारे पास। So what do you have? x1 plus a upon x1 plus b equals to x2 plus a upon x2 plus b. This is what we have. So just cross multiply. x1 x2 plus x1 b plus a x2 plus ab equals to x1 x2 plus x1 a, x1 x2 plus x1 a plus b x2 plus ab. Normal cross multiply किए. Yes. Now ab gets cancelled. x1 x2 gets cancelled. What do you have? x1b and x1a. If I bring this x1 to the one side, I'll have x1 of b minus a. Right? Similarly, x2 common. If I bring a x2 to another side, I have b minus a gets cancelled. And what do I have? I have x1 equals to x2. Yes, I have this, which proves that it is a 1 1 function, right? अब मुझे onto के लिए प्रूफ करना है। अब onto के लिए मैं क्या करती थी? So I think 1 1 is clear. So just to work on the space, I'm going to erase this. Okay, and I will now show you for whether it's onto or not. So what do I have? I have y is equal to x plus a upon x plus b.
I bring y as a function of x to x as a function of y. So what do I have? Yx plus yb equals to x plus a. I bring all the x to one side. A minus yb. Yes, and x common y minus 1. So x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a minus by upon y minus 1. राइट? अब देखो, दो तरीके से चीज़ें आपको समझाती हूँ. पहली चीज़, y 1 नहीं ले सकता, इसके अलावा y कुछ भी ले सकता है. 1 नहीं ले सकता बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. राइट? रेंज में इट इज सेटिस्फाइड. y 1 नहीं ले सकता. तो यहीं से ही आपका प्रूव हो गया कि ऑन टू फंक्शन है. क्लियर है? अगर फिर भी आपको चेक करना है तो आप एक काम कर सकते हो, इस x की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर डाल दो. y इज इक्वल टू a माइनस बी वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस a अपॉन a माइनस बी वाई अपॉन वाई माइनस 1 प्लस b. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. अगर आपके पास आंसर y वापस से आ रहा है देन इट इज एन ऑन टू फंक्शन. एक दूसरा तरीका इसको प्रूव करने का. सो आई टोल्ड यू 2 ways ऑफ डूइंग इट. वैसे तो यहीं पे ही पता चल रहा है इट इज एन ऑन टू फंक्शन. सो विच प्रूव्स दैट इट इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बोथ. क्लियर है? चलिए, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर इज योर टाइमर. ओके, सो चलिए, इंजेक्टिव 1 1, सर्जेक्टिव ऑन टू. लेट्स चेक इट आउट. आपके पास फंक्शन क्या है ये ध्यान देखना. ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये ध्यान रखना. ठीक है? और a और b दोनों एक ही चीज़ है. अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स. अगर मैं देखूँ इट इज गोइंग टू टेक द वैल्यू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0. यस और नो? मतलब अब क्या समझे कि आपके पास अगर मैं कोई भी वैल्यू x की ले लूं इट इज गोइंग टू गिव मी दिस पर्टिकुलर आंसर. होगा नहीं होगा? देखो, f ऑफ मैंने अगर 1 लिया, क्योंकि ये -1 से 1 तक ही जा रहा है तो मैं और कोई नंबर नहीं ले सकती, मेरे को इसी के बीच में ही नंबर लेना है. तो अगर मैंने मैक्सिमम इधर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया. और अगर मैंने f ऑफ -1 लिया तो इफ आई पुट दिस वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर विच इज -1. यूनिक वैल्यू ली. यूनिक वैल्यू लेने का क्या मतलब है? दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज 1 1. क्लियर? अब मेरे पास ऑन टू के लिए अगर मैं चेक करूं सो मेरे को क्या चेक करना है? मेरे को चेक करना है y इज इक्वल टू, या तो देखो एक्स स्क्वायर जा रहा है या माइनस एक्स स्क्वायर जा रहा है. आप सोच के देखो, x की कोई भी मैं वैल्यू डालूं मेरे पास एक y आएगा ही आएगा. ऐसा कोई y है जो मेरे पास नहीं आएगा बिकॉज इट इज टेकिंग अ रियल नंबर. इट इज टेकिंग अ रियल नंबर. विल आई गेट एनीथिंग विच इज, देखो ना मेरे पास आंसर में भी नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है. मैं ये भी नहीं कह सकती कि मेरा y यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा. मेरा y भी नेगेटिव आ ही रहा है. इट इज कमिंग. अंडरस्टैंडेबल? ठीक है? सो मेरा y भी -1 to -1 बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज इट इज टेकिंग. तो जब मेरे पास 1 1 भी है, जब मेरे पास सारे y कवर्ड भी है, सो इट इज अ 1 1 एंड ऑन टू इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. क्लियर है? चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड हियर इज योर टाइमर. Done? चलिए, proceeding further. y is equal to x square upon 1 plus x square is a surjection. Surjection मतलब on to. एक होता है common sense, एक होता है hard work. दोनों से समझाती हूँ, दोनों से आंसर निकाल के दिखाती हूँ आपको. देखो, अगर मैं कॉमन सेंस को यूज करूँ, पहले मेरे पास y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. अगर आप देखो डिनोमिनेटर इज इन एनी केस ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, है कि नहीं है?
डिनोमिनेटर इज इन एनी केस ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, है ना। सो न्यूमरेटर से अगर बड़ा है तो मतलब फ्रैक्शन हैज टू बी लेस देन 1, तो 1 तो हो ही नहीं सकता इन एनी केस। हाँ, x 0 हो सकता है, तो अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो इट इज़ 0 to 1 ऑप्शन नंबर डी। ये होता है कॉमन सेंस। अगर यहाँ पे भी अब आप कंफ्यूज हो कि अगर ये पेपर में ये कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर पाए फिर क्या करें, तो बेटा फिर प्रॉपर प्रोसीजर करो। कैसे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई आएगा। यानी कि आपके पास ये चीज़ क्या हो गई कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ सो इट इज रूट। अब देखो y मेरा 0 हो सकता है, बट दिस 1 माइनस वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन y, सॉरी हैज़ टू बी लेस देन 1, या 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन y। सो y 1 से छोटा है, जब 1 y से आपका छोटा है तो अगेन आ गया ना सेम आंसर आपके पास डी, 0 से 1। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन दो तरीके हैं अगेन इसको भी करने के, ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि एक तरीका है दो तरीके हैं, बिकॉज पेपर में कभी कभी क्या होता है ना, हमें चीज़ें क्लिक नहीं होती हैं, तो जो चीज़ क्लिक हो गई फिर उस समय जो चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नहीं, ठीक है। सो इट्स बेटर टू नो ऑल द वेज ऑफ डूइंग इट। सुनो सबकी करो अपनी, जो समझना है वो कर लेना, ठीक है। चलिए देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये बाइजेक्शन में देखो वो कह रहा है 1 1 तो हो सकता है, 1 1 के लिए तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 वाली चीज़ है, वो अगर आप करोगे तो आ भी जाएगी आपके पास, ठीक है। सो वो तो निकल जाएगा। 1 1 तो कोई क्वेश्चनेबल उस तरीके से नहीं है, पर ऑन टू क्वेश्चनेबल है कि क्या सारे y के आपके पास x होगा। अगर आपने यही चेक कर लिया तो बात खत्म, है ना। तो वो सारे y पे सारे x कब निकलेंगे, जब ये सेट b आपके पास होगा। और ये सेट b कैसे निकलेगा, देखो दो तरीके हैं करने के। अगेन पहला तरीका बता रही हूँ, y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास +4 -4 अगर कर दूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा +5 एज इट इज, तो 5 - 1 +1 होगा। तो यानी कि अगर मैं इधर ले जाऊँ y - 1 इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा, यानी कि मेरे पास आ गया रूट ऑफ y - 1 इक्वल्स टू x - 2 प्लस माइनस, है ना। अब मैं 2 को अगर उधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ y - 1 इक्वल्स टू x। मैंने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई। अगर आप इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 था आपके पास, दिस इज द सेकेंड मेथड। सॉरी y इज इक्वल टू था आपके पास, यू हैड दिस राइट, यू हैड दिस y इज इक्वल टू था आपके पास। अब मैं इसको 0 ले आती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस y ले आती हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। सो व्हेन आई अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है -b, यानी -b प्लस 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 16 माइनस 4ac क्लास 10th अपॉन 2 होगा। ये चीज क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 20 माइनस 4 होगा, प्लस 4y। 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 4 प्लस माइनस 4 कॉमन ले लूँ, 2 इसके बाहर पहुंच जाएगा y - 1 अपॉन 2 तो नीचे नीचे चल ही रहा है। आप 2 फिर से कॉमन निकाल लो, आपके पास क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट y - 1, ये आ जाएगी फिर से आपकी x की वैल्यू। नॉर्मल दोनों तरीके से मैंने आपको x की वैल्यू निकाल के दिखा दी, जो आपका पेपर में समझ में आए वो कर लेना। अब अगेन रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सो y - 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
तो मतलब y की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, इससे छोटी आ ही नहीं सकती है। सो क्या हो गया, 1 to infinity, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, डन है। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हियर इज योर टाइम। चलिए टाइम साथ देखिए, y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 मल्टीप्लाई में हो रही, देख के ही पता चल जाना चाहिए, देख के ही। x इज इक्वल टू 1 पे बेटा क्या आएगा वैल्यू y की, 1 डालो बस। इसी फंक्शन में मैं कह रही हूँ x की 1 वैल्यू डाल दो, क्या होगा 0। अच्छा x की 2 वैल्यू डाल दो, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। x 3 डाल दो 0, मतलब क्या आप समझ रहे हो, 1 भी वैल्यू आपको 0 दे रहा है, 2 भी आंसर आपको 0 दे रहा है, x3 भी आपको आंसर 0 दे रहा है, तो ये 1 1 हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो इट्स अ मेनी वन फंक्शन, पहली बात। ठीक है, अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है। अब सोच के देखो, मैं x की कोई भी वैल्यू डालूँ, कोई भी XYZ वैल्यू डाल दूँ, सॉरी y की, मतलब y मेरा रियल नंबर आएगा ही आएगा ना। क्या कोई ऐसा y होगा जो मेरे को x ना दे, नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं हो सकता। विच व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इट इज एन ऑन टू फंक्शन, समझे। सो इट इज ऑन टू बट नॉट 1 1, इट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्या मैम हर जगह पे आप इनवर्स ट्रिगो दौड़ा देते हो, ट्रिगो हर जगह आ जाती है, कोई ऐसे टॉपिक नहीं जहाँ पे ट्रिगो ना आए। हाँ जी कीजिए। चलिए देखिए, साइन इनवर्स 3x, इनवर्स ट्रिगो में हम क्या करते थे, हम अंदर वाले में अगर कोई ऐसा फॉर्मूला लगा दे कि हमारे पास वो साइन की फॉर्म में आ जाए, तो साइन इनवर्स और साइन क्या है, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दुश्मन है ना, दुश्मन, तो एक दूसरे को काटेंगे। सो अगर मैंने किया लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आएगा, होगा, विच इज साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3 थीटा, विच इज 3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब, क्योंकि मैंने थीटा की वैल्यू डाल दी। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 थीटा, है ना, हाँ 3 साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे बताइए कि क्या ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि ये भी देख लेना, ये साइन इनवर्स x का आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -1 to 1, और आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू 1 ब्रांच का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर रेंज में फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन इज इन्वर्टिबल मतलब वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है ये चीज़। तो अगर ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, अगर सारी वैल्यूज डिफाइंड है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो इट हैज़ टू बी बोथ 1 1 एंड ऑन टू, तो इट हैज़ टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बिकॉज इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात की गई है। अगर ये ब्रांच ना गिवन होती तो फिर नहीं होना था, है ना। और वैसे भी अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, ये साइन इनवर्स एक्स का ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। अब अगर मैं -π/2 से π/2 डिफाइन कर दूं इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, देखो 1 1 तो है ही है, ऑन टू भी है, सारी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में सब ले रहा है ना, सारी की सारी वैल्यूज। सो एनीवेज 1 1 एंड ऑन टू, सो बाइजेक्टिव, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। चलिए देखिए, आपके पास क्या है, 1 1 और ऑन टू के लिए आपको पूछा गया है। तो सेम पहली चीज़ करेंगे, x1 का स्क्वायर -8 अपॉन x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस 2, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) कर रहे हैं बच्चा, इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर -8 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 का स्क्वायर,
-8x2 का स्क्वायर -16 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर -8x1 स्क्वायर -16, राइट। अब देखिए x1 स्क्वायर ये कट गया, -16 ये कट गया। सेम इस तरह से हमने पिछला भी क्वेश्चन किया है। 2 कॉमन अगर लिया x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर वाली सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ये 10x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10x2 का स्क्वायर होगा। x1 x2 एक तरफ अगर हम ले गए तो होगा। अब ये 10 से देखो 10 कट गया, आपके पास क्या टर्म आ गई, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। जरा ये देख लो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रियल टू रियल, समझ गए। x1 equals to x2, x1 equals to minus x2, which means the function is a many one function, it is not 1 1। तो not 1 1 तो ये not 1 1 है या 1 1 not 1 1 on to या none ऑप्शन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए अब on to के लिए चेक करते हैं। on to के लिए हम क्या करते थे, हम इस फंक्शन को y is equal to x square minus 8 upon x square plus 2 था, ये था ना, हाँ ये था, ठीक है। अब x is a function of y is a function of x बनाओ, सॉरी y is a function of x is a function of y बनाओ। so y x square plus 2y equals to x square minus 8, y x square minus x square equals to minus 8 minus 2y। यानी कि अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूँ y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस अगर कॉमन ले लूँ 8 प्लस 2y, राइट। सो ओके, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 2y अपॉन y माइनस 1 को मैं 1 माइनस y लिख सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ बेटा आई हैव दिस, ठीक है। मेरी y वैल्यू 1 नहीं ले सकता ना, लेकिन मैं तो कह रही हूँ रियल टू रियल जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब जब ये 1 वैल्यू ले नहीं सकता तो क्या ऑन टू रहा, नहीं रहा, तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इट इज ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। sin x इज एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम r टू b if, ओरल है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। चलिए टाइमर लीजिए। हाँ जी, सीधा आंसर। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे। कब ऑन टू होगा, जब सारे वाई कवर होंगे। सारे वाई कब कवर है, सिर्फ इसी रेंज में तो कवर है। क्या ये वैल्यू ले सकता है, नहीं ले सकता ना। जब ये वैल्यू ही नहीं ले सकता तो अगर मैं ये वैल्यू डाल दूँ तो क्या ऑन टू बचेगा, नहीं बचेगा। सो ऑन टू होने के लिए वाई ये वाली वैल्यूज नहीं ले सकता, यानी कि सिर्फ यही वैल्यूज ले सकता है, -1 to 1। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब ये तो है हमारे प्रीवियस क्लास वाले क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में किए थे लेसन नंबर 4 में। इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज डू टू आंसर सच क्वेश्चंस। करिए। टाइम्स अप। n of a is equal to n of b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और b में इक्वल है, तो बाइजेक्शंस के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, द आंसर इज 6। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑन द सिमिलर लाइंस। नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग फ्रॉम a to b। डन। क्या होगा 8p7, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेसिकली इट इज नथिंग बट 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही होगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल ही कटेगा। 8 7s are 56, 5 4s are 20, 2 are 6, 6 into 20 120 into 6, the answer would be 40320. You can check this out, right? So that is an end to the topic functions. I believe you've covered everything. We've covered every possible things that could come.
व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ द फंक्शन टू मेक इट फंक्शन सर्जेक्टिव हमने कर लिया, आइडेंटिफाई करना कर लिया कि वो 1 1 है, ऑन टू है, और इसको कैसे MCQs इसके अटेम्प्ट करने हैं. सो मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ बचता है. सो प्लीज़ गो थ्रू माई ऑल द प्रीवियस वीडियोज़. अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो ट्रस्ट में आप एक बार दोबारा से देखिए प्रीवियस वीडियो, आपसे होने लग जाएंगे क्वेश्चंस. एंड इफ इन केस यू स्टिल हैव सम डाउट्स, put it up in the comment section. I would love to help you out. Okay, thank you so much children. Keep watching. Next chapter I'm going to come up with very soon. So keep watching, keep motivating us by like, share and subscribe. Thank you so much. See you tomorrow.